After Zomato and Swiggy, e-commerce platform Meesho is coming out with its IPO. Can a loss-making and cash-on-delivery platform survive in a world ruled by Blinkit's speed, Swiggy's stickiness, and Reliance war chest? In this video, we break down Meesho's IPO filing from its cash-on-delivery dependency to its ESOP strategy and how it stacks up against Blinkit, Reliance Retail, Swiggy and DMart Ready. इस वीडियो में हम मीशो के रेवेन्यूज, लॉसेस और उनके आने वाले आईपीओ प्राइस पर बात करेंगे। चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हो या बस भारत के अगले बड़े टेक आईपीओ को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह एक गाइड है। Let's first understand some of the risk factors that emanates from its financial numbers. Number one is the exceptional items, and number two is the employee attrition rate. And we will also understand the advertising and sales promotion as a percentage of total revenue. Let's first understand Meesho's business model. Meesho operates primarily as a social commerce platform and focuses on marketplace-based commerce, where it connects sellers with customers, handling their logistics and also payments. Meesho typically doesn't own inventory like Blinkit or Reliance Retail or DMart Ready, but earns through commissions and logistics services which it provides. Now, Blinkit, Instamart, Reliance Retail, DMart Ready, and Meesho also primarily target small businesses and individual resellers, enabling them to create an online store on the platform. It caters largely to Tier 2 and Tier 3 cities and very affordable products. Now, let's look at the numbers. FY23, the loss was 1,671. It reduced to 327 and then it jumped to almost 4,000 crore in FY25. And one of the big reasons for that is the exceptional items, 1,346 crore in FY25. And this major exceptional item under this head is ESOPs. So there was accelerated ESOP vesting for founders. आमतौर पर स्टॉक ऑप्शंस, ESOPs समय के साथ धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान मीशो ने अपने फाउंडर्स के लिए इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, यानी उनकी बाकी सभी स्टॉक ऑप्शन एक साथ दे दिए। इससे कंपनी को बड़ा टैक्स भुगतान करना पड़ा, परक्विजिट टैक्स भी कंपनी ने खुद ही भरा, जिससे एक बार का नुकसान, वन टाइम लॉस बढ़ गया। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज नॉट कॉमन इन इंडस्ट्री। आमतौर पर ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को धीरे धीरे वेस्ट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज और प्रोफेशनल लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहें और कंपनी को भी इसकी फायदा हो। और इसी एक्सेप्शनल आइटम्स में जो टैक्सेस हैं, अपार्ट फ्रॉम परक्विजिट टैक्स एंड ऑल, is also a tax on the reorganization of the company. ये भी एक बहुत बड़ा important factor है कि why they did the reorganization and why it led to a higher tax liability for the company. Meesho ने अपनी कंपनी की लीगल स्ट्रक्चर को यूएस बेस्ड होल्डिंग कंपनी से वापस भारत में शिफ्ट किया। इसे रिवर्स फ्लिप भी कहा जाता है। इस बदलाव से कंपनी को एक बार बड़ा टैक्स का भुगतान करना पड़ा और कानूनी खर्च भी उठाना पड़ा, क्योंकि टैक्स कानूनों के अनुसार इसे ओनरशिप ट्रांसफर माना जाता है। और इस शिफ्ट करने का मकसद था संचालन को सरल बनाना और इंडियन रेगुलेशन के तहत आईपीओ रेडी होना। सो जैसे आपने देखा, ये एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर वन बिग आइटम इज द एक्सीलरेटेड ESOPs दैट वर ग्रांटेड टू फाउंडर्स, एंड सेकंड इज द शिफ्ट फ्रॉम यूएस टू इंडिया and the entire reorganization of the structure, and that has led to a higher tax liability. So exceptional item है, ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। Now let's come to the employee attrition rate. Look at the number, FY23 53%, FY24 52%, and FY25 almost 34%. It's a very high employee and attrition rate if you compare this to any industry standards. Meesho का कहना है कि कंपनी में एम्प्लॉय एट्रिशन रेट काफी ऊंचा रहा है 2023 और 24 में। कंपनी मानती है, ये कंपनी का कहना है कि यह ज्यादातर ग्रोसरी बिजनेस को हटाने से हुआ। कंपनी का डिफेंस ये है कि ये ज्यादातर ग्रोसरी बिजनेस को हटाने से हुआ और कुछ कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर भी हटाना पड़ा और कुछ को फुल टाइम से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर भेजने के कारण हुआ है। लेकिन आगे चलकर यह एट्रिशन रेट और बढ़ा तो इससे मीशो की रेपुटेशन, टीम स्टेबिलिटी
और ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ सकता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है। एंड फाइनली अगर हम रेवेन्यू देखें तो 5,700 करोड़ था, 6,700 करोड़, 9,300 करोड़। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन ऐसे परसेंट ऑफ सेल 16% थे, अभी 6% और 6.8 आ गए हैं, बट रेवेन्यू is going up. So a big contribution is also coming from high advertising and promotion expenses. So this is the data of cash on delivery, and if you look at the numbers, almost 75 to 80% of the sale is coming from cash on delivery. Cash on delivery payments happens at the point of delivery rather than prepayment by any digital mode. It brings additional operational cost and risk for a business like Miso. Now let's look at FY23. Almost 89%, 85%, 77%. So a majority of the revenue, they are coming from cash on delivery. And if you look at the return orders, almost 8%, 8%, almost 8%. And here we are talking about huge volumes, and that results in extra cost and extra additional operational cost. So why it's a red flag for investors? Now, higher rate of failed deliveries and returns. हर customer cash on delivery से order करता है तो वह पार्सल लेने से मना कर सकता है या डिलीवरी के समय भुगतान ना करे। ऐसे में वो सामान वापस भेजना पड़ता है, रिटर्न टू ओरिजिन, विच इज कॉल्ड RTO, जिससे रिवर्स लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ता है और समय और मेहनत दोनों बेकार जाते हैं। सेकंड इज द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज एंड हायर कॉस्ट बेस, क्योंकि RTOs सामान लौटाने और कैश हैंडलिंग और पार्टनर रिकॉन्सिलेशन जैसी वजह से लॉजिस्टिक और हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। इसलिए कैश ऑन डिलीवरी COD वाले ऑर्डर में हर ऑर्डर पर प्रॉफिटेबिलिटी आमतौर पर प्रीपेड ऑर्डर्स की तुलना में कम होती है। थर्ड इज द डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल डिलीवरी एंड कलेक्शन सेंटर, क्योंकि मीशो का बड़ा हिस्सा कैश ऑन डिलीवरी पर निर्भर है, इसलिए कंपनी का कामकाज उसके लॉजिस्टिक और कलेक्शन पार्टनर के परफॉर्मेंस पर भी काफी निर्भर करता है। अगर ये पार्टनर डिलीवरी में देर करे, कैश ठीक से ना संभाले और सही तरह से काम ना करे तो इसका सीधा असर मीशो के बिजनेस में पड़ता है। मीशो हैज फेस्ड इश्यूज विद डिलीवरी पार्टनर्स, मिसहैंडलिंग cash and delivery collection. In May 2024, last year, it filed a police complaint against 35 vendors in Bengaluru for not depositing collected cash, and the FIR is still pending as per Miso's DRHP. So a company with very high COD share is riskier than the one with mostly prepaid payments, because more of the margin and cash flow depends on efficient delivery and collection rather than simply selling. As per the company's DRHP, Meesho and Amazon Web Services are in a dispute over 127 crore cloud bill. AWS claims that Meesho has not paid its dues for cloud services, while Meesho has accused AWS and is asking for damages in return. ये एक important chart है, Meesho versus Blinkit Instamart versus Reliance Retail versus DMart. So a bird's eye view of the e-commerce business models. So Meesho, if you see, is a social commerce marketplace model. It's a marketplace model. They don't own the inventory. Blinkit and Instamart is a quick commerce, hyper local delivery है. Reliance Retail and JioMart, they are traditional है and online retail भी है. Similarly, DMart Ready, online grocery and essential retail, both traditional and online. Second, come to the inventory ownership. No third party sellers. Meesho case, they own the stock. Blinkit and Instamart. Reliance also, yes, they own the stock, and similarly DMart, they own the stock. यहाँ पर inventory, so Meesho inventory own नहीं करता है. Target audience, resellers हैं और small businesses target audience है. यहाँ पर urban consumers हैं, daily essentials के लिए. Reliance में general consumer, mass market है, और DMart Ready budget conscious grocery shoppers को target करता है. प्रोडक्ट फोकस क्या है? फैशन है मीशो का, होम गुड्स है एंड जनरल मर्चेंडाइज है. ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट मोस्टली ग्रोसरीज एंड इसेंशियल एंड स्नैक्स. रिलायंस का है ग्रोसरी, एपरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रिलायंस इज अ मच ब्रॉडर प्लेयर. डीमार्ट ग्रोसरी, स्टेपल्स, हाउस होल्ड आइटम. कैश ऑन डिलीवरी एज हमने पहले देखा, हाई यूसेज, 75 to 88% ऑफ द ऑर्डर्स आर कैश ऑन डिलीवरी. वेरी लिमिटेड एरिया स्पेसिफिक है. यहाँ पर भी अवेलेबल है अगेन सम पिन कोड्स में. एंड डीमार्ट रेडी रेयर है. रेवेन्यू मॉडल क्या है? कमीशन आता है, लॉजिस्टिक से भी अर्न करते हैं और एड से अर्न करते हैं. यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट मार्जिन है, डिलीवरी फी भी है.
रिलायंस में प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू है डायरेक्टली एंड डीमार्ट रेडी में प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू है डायरेक्टली. इन्वेंट्री लॉजिस्टिक कंट्रोल क्या है? थर्ड पार्टी सेलर्स एंड कुरियर पार्टनर्स. सो दे हैव पार्टनरशिप विद मेनी थर्ड पार्टी प्लेयर. दे ओन डार्क स्टोर्स, फ्लीट एंड लास्ट माइल अप्स. ओन वेयर हाउसेज है एंड डिलीवरी पार्टनर्स है. डीमार्ट के भी ओन स्टॉक विद डेडिकेटेड डिलीवरी. ना दो बड़े रिस्क फैक्टर जो मीशो में इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए. वन इज अ थिन मार्जिन एंड वेरी लो टिकट प्रोडक्ट्स. मीशो मुख्य रूप से छोटे सेलर द्वारा बेचे जाने वाले सस्ते प्रोडक्ट पर ध्यान देता है. इसका मतलब है कि ऑर्डर वैल्यू बहुत कम होती है और मार्जिन भी बहुत थिन रहता है. ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट, रिटर्न और कस्टमर एक्विजिशन पर खर्च को संभालना मुश्किल हो जाता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव पड़ता है. सेकेंड इज द हायर सेलर एंड रीसेलर डिपेंडेंस है. क्योंकि मीशो एक मार्केट प्लेस है तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी, इन्वेंट्री या सेलर प्रैक्टिसेस को खुद नियंत्रित नहीं करता है. इससे कस्टमर एक्सपीरियंस में फर्क आता है और कंपनी के पास अपने कोर ऑपरेशन पर सीमित नियंत्रण रहता है, जो उसके ब्रांड रेपुटेशन पर लगातार बिजनेस को स्केल करने के लिए एक रिस्क बन जाता है. नाउ लेट्स कम टू द वैल्यूएशन. अगर आप मीशो को रिलायंस या डीमार्ट से कंपेयर करेंगे तो वो एक राइट कंपैरिजन नहीं होगा, बिकॉज दे आर मोर ऑफलाइन एंड देन ऑनलाइन. तो मीशो का कंपैरिजन बनता है जोमैटो, विच इज नाउ इटर्नल, एंड स्विगी. Now Zomato is profitable, so maybe the profit is coming from the food delivery business. So Zomato ka PE will not be the right PE to take for Meesho. Now Swiggy in a way is the right comparison, though Swiggy is into food delivery and others also apart from Instamart. लेकिन स्विगी भी अभी लॉस मेकिंग है. सो अगर मीशो और स्विगी को देखें तो FY25 में 9,390 का रेवेन्यू था मीशो का. स्विगी का है 15,227. EPS अगर देखें तो -9.98, इसका -13.72 है. रिटर्न ऑन नेटवर्थ -30. NAV पर शेयर 3.68 का है, उसका 40.98 है. वैल्यूएशन मार्केट कैप एक्सपेक्टेड 60,000 से 90,000, उसका 1 लाख करोड़ से ऊपर है. मार्केट कैप रेवेन्यू 6 to 9 एक्सपेक्टेड है. अगर मार्केट कैप टू रेवेन्यू देखें यहाँ भी 6.6 एक्चुअल है. पी रेशियो अगेन लॉस मेकिंग है तो डजंट मेक सेंस. कैगर का रेवेन्यू ग्रोथ 28% है, 30 है, तो मोस्टली दोनों बराबर ही है. एंड कैश ऑन डिपेंडेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत लो है. तो वैल्यूएशन का एक पैरामीटर बन सकता है मार्केट कैप टू रेवेन्यू. सो 6 और 9 टाइम्स के बीच में, जैसे स्विगी का 6.6 अगर 7 टाइम्स देखें रेवेन्यू का, तो मीशो का आता है अराउंड ऑल्सो 7 to 8 टाइम्स. सो इफ स्विगी ट्रेड्स एट 6.6 टाइम रेवेन्यू, मीशो विल फॉल इन अ सिमिलर बैंड. सो वो अगर हम देखें तो उससे 62,000 करोड़ का मार्केट कैप आता है, बिकॉज रेवेन्यू जैसे आपने देखा 9,390 का रेवेन्यू है, तो उसका हम अगर 6.6 करें तो वो 62,000 के करोड़ आता है. बट मीशो हैज डीपर लॉसेस, वीकर यूनिट इकोनॉमिक्स एंड हाई कैश ऑन डिलीवरी एक्सपोजर, possibly warranting a further discount than Swiggy. So Swiggy's prepaid model है, plus food, grocery stickiness is higher and margins are also higher, whereas Meesho's reliance is on resellers and low ticket items है, तो वहां भी एक नेगेटिव है. तो अगर हम डिफरेंट सिनेरियोज लें तो कंजर्वेटिव अगर लें रेवेन्यू मल्टीपल, जस्ट कंपेयर विद फर्स्ट क्राई, तो 2.5 टाइम्स का मल्टीपल है रेवेन्यू का, तो उससे वैल्यूएशन आती है 23,000 और प्राइस आता है अराउंड 425 रुपए मीशो का. अगर हम जरा मॉडरेट लें और स्विगी का मल्टीपल ले लें 6.6 to 7 रेवेन्यू मल्टीपल, तो उससे मीशो की वैल्यूएशन आती है 62,000 to 66,000 करोड़. उससे शेयर प्राइस बनता है 1,125 से 1,200 रुपए का. अगर हम नायका का ले लें विच इज 9 टाइम्स रेवेन्यू मल्टीपल, तो इसकी मीशो की वैल्यूएशन बनती है 84,510 करोड़ एंड पर शेयर प्राइस बनता है 1,535. सो मैंने आपको 3 सिनेरियो दे दिए हैं. 425 पहला सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो 1,125 से 1,200 का पर शेयर, एंड थर्ड मोर एग्रेसिव इज 1,535 का शेयर प्राइस. बट हियर इज अ डिस्क्लेमर, दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, to broaden your mind and what all parameter you should be using it before valuing it. And in case you wish to apply for Meesho's IPO, I suggest do consult your
financial advisor. So should you invest in Miso's IPO? I'll give you my assessment. Overall, Miso's IPO appears very risky to me. The company faces high losses, very thin margins, high cash on delivery, which weakens its business model. In addition, high employee attrition, logistic and collection risk, and limited control over seller quality make operation more unpredictable. While Miso's growth story looks attractive, lack of profitability and stability make this IPO one that investors should approach with caution. I guess there are better e-commerce options available in the market where the model is more evolved. And just to make a disclaimer, I have discussed companies like DMart and Nykaa in my video, and I hold investment in these two stocks.